কলকাতা রেলওয়ে স্টেশনে গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রী সেবা শিবিরের সফল সমাপ্তি। কলকাতা রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে আস্থা, সেবা ও ত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো। অখিল ভারতীয় গোস্বামী সভা পশ্চিমবঙ্গ কলকাতার উদ্যোগে আয়োজিত গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রী সেবা শিবির আজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার, এই পবিত্র ভাবনাকে সামনে রেখে টানা 6 দিন ধরে পরিচালিত এই শিবিরের মাধ্যমে প্রায় 25 থেকে 26 হাজার গঙ্গাসাগরগামী তীর্থযাত্রীকে বিনামূল্যে চা, হালকা জলখাবার, আহার ও থাকার সুব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এই সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়া একাধিক তীর্থযাত্রীকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা, প্রাথমিক পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি 100 জনেরও বেশি তীর্থযাত্রীকে সংস্থার পক্ষ থেকে টিকিটের ব্যবস্থা করে নিরাপদে ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়, যা এই সেবা শিবিরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। সংস্থার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের ফলে প্রতি বছরের মতো এবারও 6 দিনের জন্য কলকাতা স্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেন চালু করা সম্ভব হয়, যা তীর্থযাত্রীদের যাত্রাকে অনেকটাই সহজ করেছে। গোস্বামী সমাজের এই সেবা পরম্পরার ইতিহাস বহু প্রাচীন। এই সমাজের শিকড় আদি গুরু শঙ্করাচার্যের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হয়। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী গোস্বামী সমাজের প্রতিটি পরিবারে 4 জনের মধ্যে একজন সাধু সন্ত হয়ে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতেন। সেই সেবা ভাবনাকেই আজকের সময়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গের গোস্বামী সমাজের সকল সদস্য একত্রিত হয়ে এই সভার আয়োজন করেন। গঙ্গাসাগর একটি মহাতীর্থ হওয়ায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের সেবা করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এই সেবা শিবিরের উদ্বোধন করেন শ্রী ত্রিভুবন পুরুজি মহারাজ। তার আশীর্বাদ ও তত্ত্বাবধানে গত 13 বছর ধরে এই শিবির সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শ্রী ধর্মনাথজি ভারতী, যিনি সমাজে ভীষ্ম পিতামহ নামে পরিচিত, এবং তার সহমিত্র শ্রী চিত্তরঞ্জনজি গিরির দক্ষ নেতৃত্বে এই সমগ্র সেবাযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে গত 6 দিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা সকল সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের মেমেন্টো প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই শিবিরের প্রধান লক্ষ্য ছিল গঙ্গাসাগর যাত্রাকে তীর্থযাত্রীদের জন্য নিরাপদ, সহজ ও মর্যাদাপূর্ণ করে তোলা, যা তীর্থযাত্রীদের প্রশংসায় স্পষ্ট। आप उनको कितनी सुविधाएं देते हैं और कितना कुछ करते हैं, सिर्फ इतना भी नहीं। ये कहेंगे जो संस्था चल रही है, संस्था और यहाँ गंगा सागर कैंप में वहाँ भी जाके वहाँ भी कुछ, यहाँ तो करिए स्टेशन पर, आगे जाके जो गंगा सागर है वहाँ भी कुछ सेवा करें। लोग के मदद से 13वां साल है और तन मन धन से सभी लोग तैयार हैं और सभी का मदद है। ये और ऊपर वाले से आशीर्वाद चाहते हैं कि हर साल ऐसी हम लोग कैंप लगाते रहें और लोगों का सेवा करते रहें। सेवा परमधर्म, सेवा से भर के कुछ भी नहीं है। शिव पुराण में शंकर भगवान बोले हैं कि जत्र जीव तत्र शिव। हम हर जीव में समाहित हैं। हमारा पूजा ना करो, जीव सेवा करो, हमारा पूजा हो गया। अच्छा है, हर साल ये होता रहेगा। यहाँ आकर काफी अच्छा लगता है। आप लोग हर साल आती हैं? जी, ठीक। हर साल बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। लेडीज को फर्स्ट में रखकर बहुत अच्छा लगता है। और सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। सीखने को तो काफी कुछ मिलता है, जैसे कि अगर आपके पास सोर्स है तो आप दूसरों को भी वही सोर्स का आनंद दीजिए। और मतलब जैसे आपके पास जैसे खाने पीने की जितनी सुविधाएं सेम वैसे उन लोगों को मिलनी चाहिए। अखिल भारतीय गोस्वामी सभा पश्चिम बंगाल के इस पावन धरती पे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी गंगा सागर के तीर्थ यात्रियों का और खास करके गोस्वामी बंधुओं का दिल के गहराइयों से उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहां आने से मुझे आज काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है, फक्र महसूस हो रहा है कि गोस्वामी समाज पिछले कई वर्षों से, एक दो नहीं कई वर्षों से तीर्थयात्रियों की सेवा में दिन प्रतिदिन लगा रहता है। और गोस्वामी समाज के सभी अभिभावकगण, नौजुवक साथी
छोटे भाई, एक एक लोग मिलके पूरे हिंदुस्तान से आने वाले सारे गोस्वामियों का और सारे तीर्थ यात्रियों का सेवा करता है। कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए और मैं दिल की गहराई से इस संगठन के और इस संगठन के सारे ऊर्जावान अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता को दिल से बधाई देता हूँ। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है और अखिल भारतीय गोस्वामी सभा का प्रोग्राम, अगर किसी एक आदमी को इस प्रोग्राम कराने का श्रेय दिया जाए तो हमारे संस्था के संस्थापक धर्मनाथ भारती जी हैं। इसके अलावा रेलवे, आरपीएफ, ये सब रेलवे डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग के साथ ये सब कार्यक्रम होता है। 6 दिन से हम लोग पूरा सेवा किए जा रहे हैं। बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग हर साल ही कैंप लगाते हैं यहाँ पे, और हर तरह का जो भी आते हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर जो भी आ रहे हैं, हम लोग सभी को सेवा दे रहे हैं कि जितने भी यात्री हैं उन लोगों को कोई असुविधा ना हो, हर तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग कैंप लगाते हैं। बस साथी थोड़ा गुस्सा, छोटा बात पर गुस्सा हो जाता है, कुछ लक्ष्मण बाहर से, गुजरात से, यूपी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से जो आते हैं तो बड़े बड़े गट्ठर लेकर आते हैं। पुराने लोग आते हैं, वयस्क लोग आते हैं, तो उनको तकलीफ होती थी बस में चढ़ने नहीं, बस में गट्ठर लेकर उठने नहीं देता था लोग। तो हम लोग के दिमाग में आया कि भाई जो यात्री गंगा सागर जाते हैं उनकी सेवा हम लोग को करना चाहिए। एक ही साल है, सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म के चलते हमारे जितने भी ये मेंबर हैं, ये समझ लीजिए इंग्लिश में जिसको पिलर बोलते हैं, हिंदी में कर्णधार बोलते हैं। ये अखिल भारतीय गोस्वामी सभा पश्चिम बंगाल के लिए भवन निर्माण कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए निर्माण कर रहे हैं, और हमें इसमें कोई कष्ट नहीं है। हम इसमें खुशी का आनंद लेते हैं। जितना कष्ट होता है उतना ही आनंद आता है हमको। हमारे बीच हमारे अखिलेश भैया है जो सुबह 10 बजे से रात को 12 बजे तक रहते हैं। ये 75 साल की उम्र में सुरेंद्र जी कार चला के जाते हैं, मोटरसाइकिल चला के कल रात में इस ठंड में गए हैं। सोचिए इनको कितना आनंद आता है। कष्ट में कोई कहीं नहीं जाता है, कष्ट में बेड पे पड़ा रहता है। तो इसलिए आप लोग भी एक हमारा ये बैकअप करने के लिए जो आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तीर्थयात्रियों का इससे ज्यादा सेवा करते रहे, यही आप लोग से हम लोग का सहयोग चाहिए। सनातन धर्म को और कैसे सर्व धर्म को हम लोग आगे बढ़ाए। एक यदि हम किसी का सेवा करेंगे तभी एक से एक चैन आगे बढ़ेगा। इसी के माध्यम से माहौल अच्छा होगा, शांति सब जगह कायम रहेगी। और हम सबसे बड़ा धन्यवाद इस बार हमारे पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर व्यवस्था गंगा सागर का इस बार हुआ। मैं खुद गंगा सागर गया था बाई कार, और सेम डे हम लोग रिटर्न आए थे। इसलिए मैं अखिल भारतीय गोस्वामी सभा पश्चिम बंगाल के तरफ से और हमारे सारे सदस्यों के तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि यदि वो निकट भविष्य में भी अपना यह सहयोग और सुविधा हम लोग सभी तीर्थयात्री भाइयों को प्रदान करते रहते, और हम लोग भी उनका साथ उनको उन्हीं के साथ के बदौलत यह सारा कैंप लगा है। सारा खर्च तीर्थयात्री की सुविधा के लिए दिया गया। एक ही रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं, देखिए आप लोग सब मिलके काम कीजिए।